شیر خان اور گل خان اپنے سی او کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سی او نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس نقشے سے ہمیں ان جگہوں کا علم ہو گیا ہے جنہیں دہشت گرد اپنا نشانہ بنانے والے ہیں۔ ہم نے وہاں سیکیورٹی کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ جو اسلحہ ہمیں ہائیڈ آؤٹ سے ملا ہے وہ اسرائیل کی آرڈیننس فیکٹری کا بنا ہوا ہے۔ یہ اسلحہ اسرائیلی حکومت نے بھارت کو سپلائی کیا ہے۔ باقی باتیں کل ہوگی، ابھی تم لوگ جا کر آرام کرو۔ کمانڈو شیر خان اور کمانڈو گل خان السلام علیکم کہہ کر سی او کے کمرے سے باہر آ گئے۔ وہاں سے وہ واپس اپنے اپنے کوارٹر میں آ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئے اور شام کو بیدار ہوئے۔ رات کے کھانے کے بعد کمانڈو گل خان جو شیر خان کا نائب تھا، شیر خان کے کوارٹر والے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور کمانڈو شیر خان چارپائی پر نیم دراز دیوار سے ٹیک لگائے ایک البم دیکھ رہا تھا۔ شیر خان البم میں لگی ہوئی ایک فوٹو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اس نے گل خان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ گل خان شیر خان کا نائب بھی تھا اور اس کا دوست بھی۔ وہ خاموشی سے چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی چھوٹی میز کے پاس آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شیر خان نے نگاہیں اٹھا کر گل خان کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھ سے کئی بار سوال کیا تھا کہ میں جو ملک کی ایک مشہور فرم میں اتنے اچھے عہدے پر ملازم تھا اور ایک ماہ بعد میری ترقی بھی ہونے والی تھی، ایک دم سب کچھ چھوڑ کر ملک میں جرائم اور دہشت گردی کے خلاف جہاد کرنے والی تنظیم کے کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں کیوں آ گیا ہوں؟ میں نے تمہیں کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہ انقلاب میرے اندر کیسے آیا ہے اور میں نے اتنی اچھی ملازمت چھوڑ کر اس کمانڈو تنظیم میں شرکت کیوں کی۔ شیر خان نے البم میں سے ایک فوٹو نکال کر گل خان کو دکھائی۔ اس فوٹو میں ایک خوش شکل خاتون 2.5-3 سال کے لڑکے کو اپنے ساتھ لگائے مسکرا رہی تھی۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، یہ میری بیوی عارفہ اور میرے اکلوتے بیٹے عامر کی فوٹو ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں عامر کی شکل میں ایک بڑا پیارا سا لڑکا عطا کیا تو ہماری محبت کے رشتے اور گہرے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے جب کبھی مجھے ملازمت کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانا پڑتا تو میری بیوی عارفہ خط میں لکھتی تھی، شیر خان تم گھر میں نہیں ہوتے تو گھر کی ایک ایک چیز مجھے تمہاری یاد دلاتی ہے۔ عامر بار بار مجھ سے پوچھتا ہے، ڈیڈی کہاں ہیں؟ ڈیڈی کو بلاؤ، میں ڈیڈی کے پاس جاؤں گا، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ میں اسے ادھر ادھر کی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ وہ دن کب آئے گا جب تم گھر میں داخل ہوگے اور میں تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھوں گی اور تم عامر کو گود میں اٹھا کر پیار کرو گے۔ کمانڈو شیر خان نے گہرا سانس لیا اور خاموش ہو گیا۔ گل خان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا شیر خان کا فیملی فوٹو دیکھ رہا تھا۔ شیر خان کہنے لگا، اس روز ہمارے بیٹے عامر کی سالگرہ تھی۔ کمرہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، رنگ برنگے جھنڈے اور غبارے لگے تھے۔ میرے بیٹے عامر نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، اسے ڈھیر سارے تحفے ملے تھے۔ عامر کو کھلونا مشین گن بڑی پسند تھی، میں نے اسے کھلونا مشین گن کا ہی تحفہ دیا تھا۔ وہ اپنی دادی کی گود میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، سارا گھر روشنیوں میں جگمگ کر رہا تھا۔ عارفہ نے بھی خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے، وہ مہمان عورتوں سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ میز پر کیک پڑا تھا جس پر ننھی ننھی موم بتیاں روشن تھیں۔ پھر عارفہ نے بیٹے عامر کو گودی میں اٹھایا اور کیک کے پاس لے جا کر کہا، عامر بیٹا پھونک مار کر موم بتیاں بجھاؤ۔ عامر نے آہستہ سے پھونک ماری، صرف ایک موم بتی بجھی، باقی کی موم بتیاں عارفہ نے بجھا دی۔ سب نے تالیاں بجا کر سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مہمانوں میں کیک کاٹ کر تقسیم کیا گیا، چائے آ گئی۔ ننھا عامر دادی کی گودی میں بیٹھا کھلونا مشین گن کا ٹریگر دبا کر کھیل رہا تھا۔ مشین گن کی نالی میں سے تڑ تڑ کی آواز کے ساتھ شرارے سے نکلتے، جنہیں دیکھ کر عامر بہت خوش ہوتا۔ سالگرہ کی تقریب رات گئے تک جاری رہی، پھر ایک ایک کر کے سارے مہمان سالگرہ کی مبارکیں دیتے رخصت ہو گئے۔ میں، میری والدہ اور عارفہ بیٹے عامر کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ بیٹا عامر بار بار کھلونا مشین گن کو چلا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا، پھر اچانک کھلونا مشین گن بند ہو گئی۔ بیٹا عامر رونے لگا، ڈیڈی یہ خراب ہے۔ عارفہ نے کہا، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اس نے بھی چلانے کی کوشش کی مگر کھلونا مشین گن نہ چلی۔ پھر میں نے اسے چیک کیا، معلوم ہوا کہ اس کے سیل پرانے تھے جو اب کام نہیں کر رہے۔ میں نے کہا، میں بھی مارکیٹ میں جا کر نئے سیل لے کر آتا ہوں۔ اس وقت باہر آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہلکی ہلکی بجلی بھی چمکنے لگی تھی، جس کی چمک بیڈ روم کی کھڑکی میں سے نظر آ جاتی تھی۔ والدہ اور عارفہ نے مجھے روکا کہ اتنی رات ہو گئی ہے، بارش بھی آنے والی ہے، میں نہ جاؤں، صبح سیل آ جائیں گے۔ لیکن مجھے اپنے بیٹے کی خوشی منظور تھی جو کھلونا مشین گن کے نہ چلنے سے اداس ہو گیا تھا۔ میں اس کی سالگرہ کے دن اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے عارفہ سے کہا، چوک والا سٹور کھلا ہوگا، میں ابھی سیل لے کر آ جاؤں گا، اور میں سب کے منع کرنے کے باوجود مکان سے باہر نکل آیا۔ باہر بجلی کسی وقت ضرور چمک رہی تھی مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس رات مجھ پر کتنی بڑی قیامت گزرے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شیر خان اپنے مکان سے نکل کر تیز تیز قدموں سے مارکیٹ کی طرف چل پڑا۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہوگا، بجلی چمک رہی تھی، بادلوں کی ہلکی ہلکی گرج سنائی دے رہی تھی، شہر کی سڑک سنسان پڑی تھی، دور کچھ فاصلے پر مارکیٹ کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ شیر خان اسی مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا۔
ऐन उस वक्त शेर खान के मकान की खिड़की के पास 4 भारतीय दहशतगर्द नमूदार हुए। उन्होंने स्याह चादरों में अपने मुंह सर छुपा रखे थे। उनके हाथों में क्लैशनकोफे थी। बिजली चमक चमक कर उनके खौफनाक चेहरों को दिखा रही थी, मगर वहाँ रात के सन्नाटे में उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। एक दहशतगर्द खिड़की के शीशे के करीब मुंह ले जाकर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। खिड़की के अंदर की जानिब पर्दा लटक रहा था, लेकिन दरमियान में से थोड़ी सी खाली जगह है जहाँ से अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। कमरा खाली था। उस वक्त बेडरूम में शेर खान की वालिदा सोफे पर बैठी तोहफे में मिले हुए डिब्बों को खोल कर देख रही है। शेर खान की बीवी आरिफा पलंग पर बेटे आमिर के पास बैठी उसकी तरफ देख रही थी। आमिर खिलौना मशीन गन को चलाने की बार बार नाकाम कोशिश कर रहा था। आरिफा परेशान है। बाहर बादलों की गरज सुनाई देती। शेर खान की वालिदा परेशान होकर कहती, खुदा खैर करे, बेटे को इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए था। आरिफा परेशान सी होकर कहने लगी, मैंने तो उन्हें मना भी किया था, मगर आमिर जिद करने लगा। उस वक्त चारों दहशतगर्द एक एक करके खिड़की में से कूदकर बेडरूम के साथ वाले कमरे में आ गए। दूसरे कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। शेर खान की वालिदा ने घबरा कर कहा, या अल्लाह, ये कैसी आवाज है। अभी ये जुमला उस बूढ़ी खातून की जबान पर ही था कि बेडरूम का बंद दरवाजा धड़ाक से खुला और चारों दहशतगर्द अंधाधुंध क्लैशनकोफों के ब्रस्ट फायर करते बेडरूम में दाखिल हुए। एक लाइन में खड़े होकर उन्होंने शेर खान की बूढ़ी वालिदा, उसकी बीवी आरिफा और बेटे आमिर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चंद सेकंड के अंदर अंदर बेडरूम में खून में नहाई हुई 3 लाशें पड़ी थीं। उसके फौरन बाद चारों दहशतगर्द जिस तरफ से आए थे उसी तरफ फरार हो जाते हैं। बेडरूम में मौत का सन्नाटा तारी था। शेर खान की वालिदा की लाश सोफे पर पड़ी थी। आरिफा की खून में लथपथ लाश पलंग पर अपने बेटे आमिर को सीने से लगाए बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। जैसे ही दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू की थी, आरिफा ने चीख मारकर आमिर को अपने सीने से लगा लिया था। आमिर का जिस्म अपनी माँ के जिस्म के साथ ही गोलियों से छलनी हो गया था। सिर्फ बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मकान के सदर दरवाजे पर शेर खान नमूदार हुआ। उसके हाथ में प्लास्टिक का लिफाफा था जिसमें खिलौना मशीन गन के नए सेल पड़े हुए थे। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसके खानदान पर क्या कयामत गुजरी है। वो दरवाजा खोलकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और वहीं से पुकारा, बेटा आमिर, मैं तुम्हारे सेल ले आया हूँ। वो बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसको अजीब किस्म की खामोशी का एहसास हुआ। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर उसे जो खूनी मंजर नजर आया, उसने शेर खान पर सख्ता तारी कर दिया। 2 सेकंड के लिए वो जैसे बिल्कुल पत्थर हो गया। फिर प्लास्टिक का लिफाफा उसके हाथ से गिर पड़ा और वो चीख मारकर वालिदा की लाश की तरफ बढ़ा। फिर पागलों की तरह पलंग पर आरिफा और अपने बेटे की खून में नहाई हुई लाशों के पास आकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी बीवी आरिफा मर चुकी थी, उसकी वालिदा भी मर चुकी थी। उसने बेटे की लाश को अपने सीने से लगा लिया और पागलों की तरह रोने और बेटे को आवाजें देने लगा। अचानक उसके बेटे के हल्क से हिचकी की सी आवाज निकली। शेर खान को कोई होश नहीं था कि वो कहाँ है और जहाँ है वहाँ क्या हो चुका है, क्या हो रहा है। उसका दिमाग बंद हो गया था। उसके कानों में आंधियां चल रही थीं। बेटे की हिचकी की आवाज पर उसने चीख कर कहा, आमिर, और उसे अपने सीने से लगाकर दीवानावार बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। वहां से बच्चे की नीम जान लाश को सीने से चिमटाए दौड़ता हुआ मकान के दरवाजे से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। उसने सड़क पर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बिजली रह रह कर चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। पीछे से किसी गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ी। वो सड़क के दरमियान खड़ा हो गया और चीख कर कहने लगा, मेरे बेटे को बचा लो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। लेकिन गाड़ी उसके पहलू से होकर निकल गई। शेर खान बच्चे की लाश को उठाए दौड़ने लगा। पीछे से एक और गाड़ी आई। शेर खान वहीं रुक गया। उसने हाथ देकर चीख कर कहा, मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचा दो, मेरा बेटा अभी जिंदा है, खुदा के लिए हमें अस्पताल पहुंचा दो। गाड़ी उसके करीब आकर रुक गई। एक बुजुर्ग खुद गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोलकर कहा, जल्दी से आ जाओ। शेर खान खून में डूबी हुई अपने बच्चे की नीम जान लाश को लेकर गाड़ी में दाखिल हो गया। गाड़ी तेजी से एक अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। 2-3 सुनसान सड़कों पर से गुजरने के बाद गाड़ी एक अस्पताल के पोर्च में आकर रुक जाती है। शेर खान बच्चे को सीने से लगाए तेजी से गाड़ी में से निकलता और अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ते हुए चीख चीख कर डॉक्टर को पुकारता है, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लें। एक कमरे में से एक डॉक्टर और एक नर्स बाहर निकल आए। शेर खान ने भराई हुई आवाज में कहा, डॉक्टर, मेरे बच्चे को गोलियां लगी, ये अभी जिंदा है, इसे बचा लें। दीवार के साथ एक स्ट्रेचर लगा हुआ था। नर्स जल्दी से स्ट्रेचर को खींच कर लाई। डॉक्टर ने शेर खान से नीम मुर्दा आमिर को लेकर स्ट्रेचर पर डाला और नर्स से कहा, ऑपरेशन थिएटर। डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर को देखते हुए कुछ फासले पर एक कमरे में दाखिल हो गए जिसके बाहर ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। शेर खान के अपने बदन से जैसे जान निकल गई थी। वो बेजान सा होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खाली बेंच पर बैठ गया। फिर जल्दी से उठकर पागलों की तरह इधर से उधर टहलने लगा।
उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। वो फटी फटी आंखों से हर आने जाने वाले को देख रहा था। बार बार उसकी निगाहें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ उठ जाती। इतने में दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर निकला। शेर खान दौड़कर उसके पास गया। उसने बेताबी से पूछा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जिंदा है ना? डॉक्टर ने शेर खान के कंधे पर हाथ रखकर अफसुर्दगी से कहा, हौसला करो, खुदा को यही मंजूर था। शेर खान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसे महसूस हुआ कि वो अंधेरे की तारीक लहरों के बगुलों में फंस गया है। वो दीवानावार ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। स्ट्रेचर पर उसके इकलौते बेटे आमिर की लाश पड़ी थी। नर्सें और डॉक्टर उसकी तरफ लपके, मगर शेर खान को किसी की कुछ खबर न थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सारी दुनिया में अकेला है। उसके सामने उसके बेटे की लाश है। उसने बेटे की लाश उठाई और सीने से लगाया, सर झुकाए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। न उसकी आंखों में आंसू थे, न उसके हल्क से कोई आवाज निकल रही थी। चेहरा जर्द पत्थर की तरह साकित था। वो यूं चल रहा था जैसे कोई उसे धकेल रहा है। ये गम की इंतहाई शक्ल थी। वो अस्पताल से बाहर आया तो बारिश हो रही थी, जैसे आसमान उसके गम पर आंसू बहा रहा था। दूसरे रोज शेर खान की वालिदा, उसकी प्यारी बीवी और प्यारे बेटे को उसकी आंखों के सामने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने प्यारों और अपने जिगर के टुकड़ों की कब्र पर फूल चढ़ाने लगा तो उसकी चीख निकल गई और वो वहीं बेटे की कब्र से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगा। उसके अजीजों और दोस्तों ने उसे संभाला और हौसला दिया। उससे अगले रोज शेर खान के घर में सब अजीज व अकारिब और उसके दोस्त जमा थे। सब सोगवार थे। कभी कभी कोई उठकर शेर खान के पास आकर उसे हौसला देता, हौसला करो भाई, अल्लाह को यही मंजूर था, खुदा की अमानतें थी, उसने वापस ले ली। शेर खान चुप था। उसके होंठों पर मोहरे सुकूत सब थी। वो फटी फटी आंखों से हर एक को तक रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। शेर खान का एक रिश्तेदार दूसरे से कह रहा था, ये सब दुश्मन के भेजे हुए दहशतगर्दों का काम है। शेर खान को उसी रोज मालूम हो गया था कि उसके बीवी बच्चों को भारत के भेजे हुए दहशतगर्दों ने कत्ल किया है। इसलिए कि शेर खान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इससे पहले भी मुल्क में एक जगह ऐसी अलमनाक वारदात हुई थी जिसमें भारत के दहशतगर्दों ने पूरे के पूरे खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सब रिश्तेदार, दोस्त, अजीजो अकारिब शेर खान को हौसला और सब्र की तलकीन करते हुए चल दिए। शेर खान घर में अकेला रह गया। कुछ देर तक वो सोफे पर बैठा खाली कमरे के दरो दीवार को तकता रहा। फिर उसे ऐसे लगा जैसे साथ वाले बेडरूम से उसके बेटे आमिर ने उसे आवाज देकर बुलाया हो, डैडी। शेर खान के मुंह से बेख्तियार निकल गया, आमिर बेटे मैं आ रहा हूँ। वो दौड़कर बेडरूम में गया। बेडरूम खाली पड़ा हुआ था। पलंग के पास मेज पर उसकी बीवी आरिफा और बेटे आमिर की फ्रेम की हुई तस्वीर रखी हुई थी। वो उखड़े उखड़े कदमों से तस्वीर की तरफ बढ़ा। पलंग के पास जाकर उसके पांव किसी चीज से टकराए। उसने झुककर देखा, दरी पर खिलौना मशीन गन पड़ी थी जो शेर खान ने अपने बेटे को सालगिरह के तोहफे के तौर पर दी थी। शेर खान ने खिलौना मशीन गन उठा ली। खिलौना मशीन गन हाथ में लेकर वो उसे देखता रहा। उसके दिलो दिमाग में जैसे आंधियां चलने लगी, कानों में बादलों के धमाके गूंजने लगे, आंखों में बिजलियां सी चमकने लगी। शेर खान खिलौना मशीन गन लिए बेडरूम से बाहर निकल गया। शेर खान ने कहा, मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी शफीक माँ, मेरी मोहब्बत करने वाली बीवी, मेरा इकलौता बेटा आमिर, मेरा हंसता मुस्कुराता घर देखते देखते बर्बाद हो गया। जिस घर में एक लम्हा पहले सालगिरह की खुशियां मनाई जा रही थीं, हर तरफ कह कहे गूंज रहे थे, वहां दूसरे लम्हे मेरे प्यारों की खून आलूद लाशें पड़ी थीं। और जब मुझे मालूम हुआ कि ये दुश्मन मुल्क के भेजे हुए दहशतगर्दों की लाई हुई बर्बादी थी, जिनका मकसद रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग सेंटरों, बसों के अड्डों, सिनेमा घरों, चलती लारियों में बम्बों के धमाके करना और घरों में और इबादत गाहों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारना है, ताकि मुल्क इंतशार का शिकार हो जाए, मुल्क में खौफ व हरास फैल जाए और मुल्क तरक्की न कर सके। तो मेरी आंखों के सामने से जैसे एक पर्दा हट गया। मैंने अपने असली दुश्मन को पहचान लिया। फिर मुझे पाकिस्तान और कश्मीर की हर माँ अपनी माँ, हर बहन अपनी बहन और हर बच्चा अपना बच्चा लगने लगा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जब तक जिंदा हूँ दहशतगर्दी और दुश्मन के भेजे हुए दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करता रहूंगा, और जब तक मुल्क से दहशतगर्दी और कश्मीर से भारतीय फौज और उनके जराइम का खात्मा न कर लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर मैं एक रोज उस तंजीम के कमांडो सेंटर पहुंच गया जिसका नारा है, मुल्क से जराइम और दहशतगर्दी का खात्मा और कश्मीर की आज़ादी तक मुसलसल जिहाद। ये है मेरी दास्तान हयात, और ये वो वजह है कि मैंने एक आला मुलाजिमत छोड़कर उस तंजीम में शिरकत कर ली और कलम छोड़कर स्टेन गन उठा ली। शेर खान खामोश हो गया। नायब गुल खान पर शेर खान की जिंदगी के दर्दनाक हादसे ने गहरा असर डाला था। छोटे से कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में गुजरे हुए वाकयात और हादसात की उदासी भी थी और आने वाले सुनहरी मुस्तकबिल का पैगाम मुसर्रत भी था।
शेर खान ने गुल खान से अपनी फैमिली ग्रुप वाली फोटो लेकर एल्बम में लगाई और एल्बम को बंद करके एक तरफ रख दिया और पुरजोश लहजे में बोला, मैंने गम की दास्तान का ये बाब बंद कर दिया है। अब मेरे सामने एक नया दरवाजा खुल चुका है जिसके आसमान पर मैं अपने वतन के सुनहरी मुस्तकबिल के सूरज को तुलू होते देख रहा हूँ। हमने अपने असली दुश्मन को पहचान लिया है। हमारा असली दुश्मन भारत है, जिसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और जो पहले दिन से पाकिस्तान को खत्म करने की साजिशों में मसरूफ अमल है। लेकिन उसे नहीं मालूम कि पाकिस्तान अल्लाह और उसके दीन इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है और उसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपने बच्चों के खून के नजराने पेश किए हैं और वो कुर्बानियां दी हैं कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दुश्मन चाहे जितने हथकंडे अपना ले, जिस कदर चाहे तखरीबी कार्रवाइयां और साजिशें करे, पाकिस्तान और कश्मीर का बच्चा बच्चा उनके खिलाफ जंग करेगा और उन्हें नाकाम बना देगा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, दुश्मन ने जब भी वतन अजीज पर हमला किया उसे जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम अपने वतन पाक के सिपाही हैं, गाजी हैं, हम मैदान जंग में हैं और जब तक जिंदा हैं दुश्मन के खिलाफ जंग करते रहेंगे और उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। शेर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने नायब गुल खान की तरफ देखकर कहा, अब तुम भी जाकर आराम करो, सुबह हमें अपनी तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर से मिलना है। मेरा ख्याल है कि वो हमें किसी अहम मिशन पर भेजने वाले हैं। नायब गुल खान ने बड़ी गर्मजोशी से शेर खान से हाथ मिलाया और खुदा हाफिज कहकर चला गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।